Okay, guys, so this is critical reasoning that we are continuing from the previous session that we have conducted. And what we are going to do in this particular sheet that was already sent previously in the group is that we will be, the very first thing, we will be breaking down the arguments. We'll break down the arguments. Secondly, we will think with respect to the perspective of an examiner. एग्जामिनर क्या सोच के करता है, ठीक है, क्या चलता है एग्जामिनर के दिमाग में, आखिर वो कौन सी चीज को पकड़ता है, ठीक है. तीसरी चीज, नो एक्सटर्नल लॉजिक. ऐसा नहीं होना चाहिए दैट आप कोई एक्सटर्नल लॉजिक लगा रहे हो. कंसिडरिंग ऑल दीज प्रोस्पेक्ट्स, let us now proceed with the questions that we are given with. The very first one, I'll try to just explain everything, and I'll just try to make a flow chart of all the scenarios that I mentioned, and accordingly try to solve the questions. See, historian double colon, that means यहाँ पे बोला जा रहा है कि historian नाम का बंदा है, ठीक है, या कोई historian है, उसका कुछ assertion या कोई statement है. What is that statement? We are going to see that. Historian भाई सब बोलते हैं that buddy, the recent deep excavation at the site of ancient city of Veredia, have uncovered exceptionally large quantities of finely crafted obsidian blades. Okay, Veredia, perfect. Excavation. The resultant factor is that they found something called obsidian blades, which were pretty much obviously they are finely crafted. They're finely crafted. Okay, the next one. The Geological Service confirmed that this obsidian is not naturally found anywhere within 500-mile radius of Veredia. ठीक है, 500 माइल के रेडियस में ये जो ऑब्सीडियन स्टेल है ये कहीं पे मिलता है. Therefore, we can definitively conclude that the ancient inhabitants of Veredia must have engaged in extensive, complex, long-distance trade networks to acquire the raw material. मतलब ये इनको मिलता था through trade networks, which were pretty much long. And this is the conclusion. ठीक है. Now, which of the following would it be most useful to establish in order to evaluate the historian's argument? Argument क्या है historian का कि देख भाई वेरेडिया में एक्सकवेशन हुआ, वहां पर उनको मिलते हैं फाइनली क्राफ्टेड ऑब्सीडियन ब्लेड्स. ठीक है, चलो इतना समझ गए सर. Obsidian blades के फिर इसने यहाँ पे importance बता दी that what exactly are those obsidian blades, etc, etc. Now moving ahead, when we are going towards the options, we have to think that इनमें से ऐसा कौन सा option जो सबसे ज्यादा useful है किस चीज के लिए, that we can establish something कि भाई वहां पे जो historian का argument है ना वो valid है, it is not something invalid. ठीक है कि भाई वो valid चीज बोल रहे हैं, बकवास नहीं कर रहे historian. Question stem clear है? Yeah. Yes. Okay. Whether other ancient cities located in the same general region as Veredia also engaged in sophisticated long-distance trade network. Okay. हमारा कंक्लूजन क्या है? सबसे पहले तो हम वो चीज पे फोकस करेंगे. इवन इफ वी आर सेइंग कि फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर हम मान के चलो ट्रू मानते, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड यूजफुल होने के साथ साथ यहाँ पे ये चीज भी लगी है मोस्ट यूजफुल. आई एम सेइंग फर्स्ट वाला गलत है, हो सकता है फर्स्ट वाला ही सही है, हो सकता है सेकंड सही है, थर्ड सही. बट प्रॉब्लम पता क्या है? मतलब दो चीजें हैं प्रॉब्लमेटिक. पहली चीज, नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर विद इन 500 माइल रेडियस ऑफ वेरेडिया. ठीक है, इसके ये क्या बोलता है? अदर एंशिएंट सिटीज लोकेटेड इन द सेम जनरल रीजन एज वेरेडिया. कैसे? डू यू थिंक हाईलाइटेड पार्ट और ये पार्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? Why are we even discussing about the other cities? Like, क्यों? Don't you think that is the irrelevant part that we are focusing upon?
या कैसे? बिकॉज दैट इज व्हाट आई फील, आई जस्ट डोंट थिंक, आई फील इट कि भाई हाँ ये चीज तो देखो रेलेवेंट है, विच इज आई कैन से इट इज सिंपल एलिमिनेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Whether the obsidian blades found at Viridium were utilized primarily for utilitarian agricultural purposes or for elaborate ceremonial rituals. No. हमें क्या चीज जाननी है? ट्रेड नेटवर्क, लॉन्ग रूट्स, ठीक है, इसकी बात चल रही है। उसका यूज तो नहीं चाहिए। Why are you saying कि भाई आप यूज क्या है उसका? My simplest question from author है, आप यूजर्स क्यों बता रहे हैं? क्या रेलेवेंस है? Eliminated. Whether the primary river systems surrounding Viridia were navigated by large trading vessels during the ancient period in questions. Okay, now this I'm gonna put. क्यों? Navigation, large trading vessels, navigate कर रहे हैं मतलब एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा होगा तभी वो नेविगेशन के उस पे आया। Whether a nomadic militarist group known to heavily utilize obsidian tools temporarily conquered and occupied Viridian during the time the blades were deposited. Oh yeah. क्यों? यहाँ पे किस रीजन के कारण करते? उसका फैक्टर ये है कि यार देखो, अगर आप यहाँ बोल रहे हो, इफ यू आर सेइंग कि वेरिडियम में जिस टाइम पे वो ब्लेड्स डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, उसी टाइम पे टेम्पोररी ऑब्सीडियन टूल्स कॉन्कर भी हुए थे और ऑक्यूपाई भी किए गए थे, ठीक है, और उनको डिपॉजिट किया गया था वेरिडियम, ठीक है। टिल नाउ आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड विद द आर्गुमेंट दैट दिस पर्टिकुलर इज प्रोवाइडेड। ये चीज क्लियर है, आई एम नॉट सेइंग यही सही है, हमने होल्ड किया। लेट्स सी ऑप्शन नंबर ए, whether the local artisans residing in Viridia possess the specialized metallurgical skills necessary to manufacture tools from other local markets. And the problem, you know, in this thing is that I'm not कोई कनेक्शन convinced तो है नहीं इसमें। with skills. Metallurgical skills, manufacture tools. I'm not convinced with this part. Which is very limited. Now, the battle is between C versus D. C versus D में प्रॉब्लम क्या आ रही है अपन उसको एक बार आइडेंटिफाई करके देखते हैं। C बोलता है कि भाई देख, पुराना जो प्राइमरी सिस्टम रहा है रिवर का, ठीक है, जो वेरिडिया के, मान के चलो ये वेरिडिया है, रिवर सिस्टम इसका ऐसे निकल गया, ठीक है, ये रिवर were navigated by large trading vessels during the ancient period in question. क्या हमारा रिवर सिस्टम जो वेरिडिया को सराउंड कर रहा था, was that navigable by large trading vessels? क्या यहाँ पे जो बड़े शिपमेंट्स होते थे, क्या वो बड़े शिपमेंट्स यहाँ पे आसानी से आ जाते थे क्या? ये इस चीज को बोल रहा है। वर्सेस whether a nomadic militaristic group known to heavily utilize obsidian tools temporarily conquered and occupied Viridia during the time the plates were deposited. C versus D है। हमें देखो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड दिख रहा है वो हम गेटिंग कंफर्म्ड इन आपका ऑप्शन नंबर डी। सी में रिवर इज ओके, आई एम नॉट सेइंग रिवर गलत है, रिवर इज गिविंग यू अ फेजिबिलिटी कि भाई आप ट्रेड अच्छे से कर सकते, feasibility है। It is not signifying the necessity. यहाँ पे necessity की बात कर ही नहीं रहा है, उस feasibility पे फोकस रहा है। It is not talking about any necessity. और अगर necessity पे फोकस नहीं कर रहा है, how can I say कि भैया हमारे जो भाई साहब हैं हिस्टोरियन, ठीक है, वो इस चीज को बोल सकते हैं that large quantities of finely crafted obsidian blades वहां पे पाई गई, which is why although आप बताइए। Author historian argument was their complex long distance trade networks to acquire this raw material. ठीक है, Then हमारा फोकस तो ट्रेड पे रहेगा ना, क्यों रहेगा? क्योंकि ऑथर बोल रहा है कि उधर ट्रेड सिस्टम हो सकता है, ठीक बोला है, है।
ठीक है, चलो मैं ये बताऊँ Then we मुझे। have to validate the कैसी, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे एक आइटम है जो कि नहीं मिलता है, ठीक है, एक्स प्लेस पे, और वो मतलब होता ही नहीं है, दैट इज वन पार्ट, वो आइटम मिल रहा है मुझे, ठीक है, और इसका आर्गुमेंट ये है कि वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो ट्रेड होके बाहर से आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये ट्रेड होके बाहर से आ रहा है, ये उसका मतलब ये पार्ट के जो भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमें, वो अगर ट्रेड होके मिल रहा है, एक पॉसिबिलिटी है कि करेक्ट, ट्रेड होके आ रहा है। अगर इसको मुझे अगर जस्टिफाई करना है तो मुझे ये बोलना होगा कि नहीं और कोई कंडीशन है ही नहीं, मतलब उस समय पे उस ऑब्जेक्ट का मतलब उस ऑब्जेक्ट उस प्लेस पे मिलने के लिए कोई और तरीका था ही नहीं, बस यही एक तरीका है, ठीक है, करेक्ट, ट्रेड से आना चाहिए। तो अब ट्रेड से आना चाहिए तो यहाँ पे मुझे ट्रेड करने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है कि मुझे रिवर ही चाहिए, मैं लैंड से ट्रेड हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको सी को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, वैलिड है। ठीक है। हाँ, अब मंजू, दूसरे शहर में अगर ट्रेड हो रहा है तो वहां से भी मुझे ट्रेड करके इसको लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे शहर में तो ये नहीं पाया जाता है, करेक्ट, ये उस शहर में पाया जाता है, तो ए एलिमिनेट मैंने उस तरीके से कर दिया था। देखेंगे एलिमिनेशन अपन देखेंगे, है ना, पहले इसका डाउट क्लियर कर दे मंजू। ठीक है मंजू, स्विच ऑन योर माइक। या कैसी? आप बोल रहे हो ट्रेड होना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है हाँ ना, हमें ये बताओ इसमें कहाँ पे लिखा है कि ऑब्सिडियन ही ट्रेड हो रहे हैं, कहाँ पे लिखी है ये चीज? नो नहीं है, राइट। What I can say is, although it is a correct answer choice, है ना, this one's correct, but at the same time, despite being correct, ठीक है, it is not coming towards the framework of validating the argumentative framework that is given to you. ठीक है, आपके यहाँ पे वो चीज given नहीं है. It is not talking specifically about the obsidian tool वाला part versus अगर हम D ऑप्शन में जाते हैं, डी ऑप्शन में बोल रहा है नोमैडिक कौन होते हैं? नोमैड्स आर समवन जो भाई रेगुलरली किसी एक जगह पर ट्रैवल नहीं करते, ठीक है, नोमैड्स जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, मतलब बेसिकली एक जगह पर टिकते नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, वो किसी एक जगह पर टिकते नहीं, दे जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स होते हैं जिनके, ठीक है, जिनके फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स होते हैं, दोस पीपल आर नोमैड्स, ठीक है, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता। मिलिट्रिस्टिक ग्रुप, ठीक है, मिलिट्री ग्रुप क्या होता है? यू नो व्हाट, मिलिट्री को अगर कोई भी चीज चाहिए है तो मिलिट्री उस चीज को या तो आउटसोर्स करेगी या उसका ट्रेड करेगी, ठीक है। अभी जो आपका मिडिल ईस्ट की क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, मिडिल ईस्ट के जो भी क्राइसिस है और जो पेट्रोल वाला इशू हो रहा है, जितना पैसा गवर्नमेंट पेट्रोल पे लगाएगी, अगर वो पैसा अपन बचा लेते हैं, कैसे बचाएंगे? बट नॉट ट्रैवलिंग आउटसाइड, ठीक है, इन एन एक्सटेंसिव मैनर, इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, अपना जो पेट्रोल का बजट है डायरेक्टली अपने डिफेंस बजट में जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग फर्स्ट पोस्ट देखते हो उसमें ये चीज बताई गई है, पिछले लाइक परसों का न्यूज है ये चीज, ठीक है, पेट्रोल क्राइसिस वाला जो फैक्टर है तो उसका जो बजट है वो आपका डिफेंस में जा सकता है, ठीक है। विच इज वाई अगेन वी कैन से कि यार आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इट इज क्लियरली सैटिस्फाइंग ऑन द ग्राउंड्स कि भाई सी ऑल्दो बीइंग करेक्ट बट इट इज नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन स्टेम, विच इज वाई डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस विद अस। अभी क्लियर है अच्छे से? या पक्का? हाँ चलो सिक्स्थ देखते हैं। Over the past decade, the government of Genovia has heavily subsidized its domestic solar panel manufacturing industry. पिछले 10 सालों गवर्नमेंट है जेनोविया की, ठीक है, जेनोविया की गवर्नमेंट है। What it has done, it has, you know, like उसने जो डोमेस्टिक आपका सोलर वाले था, ठीक है, उसको उसने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा तरीके से सब्सिडाइज किया, ठीक है सर, एज अ डायरेक्ट रिजल्ट। ओके ग्रेट, इसका रिजल्ट बता रहा है ऑथर। Genovian solar panels are now
unequivocally the cheapest in the world, and domestic consumer adoption of solar energy has soared to unprecedented level. ठीक है, प्राइस इसका कम हो गया, यूज इसका बढ़ गया. ठीक है, किसका? सोलर पैनल्स या सोलर एनर्जी का. Nevertheless, a coalition of independent economists argues that the government subsidy program has actually been an overall detriment to Genovia's macroeconomic health. इन सारी चीजों के बावजूद एक चीज एग्जिस्ट कर रही है कि भाई जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो ये चीज बोल रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट सब्सिडरी प्रोग्राम्स चल रहे हैं ना, ये एक्चुअली ओवरऑल देखिए दे आर नॉट वेरी मच प्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव नहीं है. किस चीज के लिए प्रोडक्टिव नहीं है? टू जिनोविया मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ. मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ के लिए ये नहीं है वैलिडेटेड, ये नहीं है प्रोडक्ट. ठीक है, गवर्नमेंट इस चीज फोकस दे रही है. आगे देखते हैं. आर्गुमेंट पूरा क्लियर है? No case. Yes, yes, Can you- So actually मुझे while I was reading the meaning of this determinant, Detriment. हाँ ये क्लियर नहीं था, लेकिन मैंने इसका nevertheless वहां से चूंकि टोन चेंज होगा, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव ही बोला होगा, मैंने इस पे. Correct. ठीक है, मंजू आप क्या बोल रहे थे? Can you repeat the argument? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जेनोविया है, ठीक है, वो क्या कर रही है? डोमेस्टिक सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर रही है और गवर्नमेंट क्या कर रही है? उस चीज को बहुत ज्यादा सब्सिडाइज कर रही है. एट द सेम टाइम जेनोविया के जो सोलर पैनल्स या सोलर एनर्जी है ना, उसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है मार्केट में, जिसका एक रिजल्टेंट फैक्टर ये है कि लोग ज्यादा यूज करने लगे सोलर एनर्जी को. लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद आपका जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट सब्सिडरी प्रोग्राम है, ठीक है, इट हैज बीन डेट्रीमेंट. ये एक नेगेटिव चीज है हमारे जेनोविया की मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ में. अभी क्लियर है? हाँ. Which of the following, if true, ठीक है, if true मतलब सबके सब ट्रू है, provides the strongest logical support for the independent economists' argument. Strongest logical support for the independent economist की argument क्या है? क्या argument क्या है? ये है. तो अब ऐसा कोई ऑप्शन जो इस चीज को और थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, वही हमारा आंसर. What we are looking for is that यार देखो, despite success, सक्सेस होने के बावजूद हमारा जो मेन क्लेम है वो इस चीज पे जा रहा है कि यार देखो, दिस इज हार्मफुल इन ओवरऑल केस. क्लियर है? एनी ऑप्शन दैट शोज अस कि यार हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक में जो डैमेजेस आ रहे हैं, ठीक है, एनी ऑप्शन दैट इज गोना वैलिडेट दिस पार्ट, दैट विल बी माय आंसर. देखते हैं. The global market price of natural gas has dropped significantly over the past decade, making it cheaper energy source than subsidized solar power in many developing nations. ठीक है, चलो मान लिए हमारा जो ग्लोबल मार्केट है नेचुरल गैस का, वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप आउट हो गया है पिछले कई सालों से, पिछले 10 सालों से सॉरी, जिसके कारण ये एक चीपर एनर्जी सोर्स बन चुका है आपके सब्सिडाइज सोलर पावर. बट यार हमें तो ये चीज बताना था कि हार्मफुल हो गया है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ जो है वो खराब हो गई है, हमें तो इस चीज पे जाना था. मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है? व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? योर नेशनल इनकम, योर जीडीपी, योर एक्सपोर्ट, योर इंपोर्ट्स, ये सारी चीजें आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं. लार्जर पिक्चर, आपके जो टैक्सेशन जो होता है, आपके जो स्लैब्स बनते हैं, दिस इज व्हाट योर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर.
इसमें कहाँ पे कवर कर रहा है उस चीज को बताओ? Anywhere is not even targeting that part. Which is why what I can say कि यार ऑप्शन नंबर ए जो है ना, पहली चीज तो देखो वो टैक्स ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ के कारण या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण एलिमिनेट हो गया। दूसरी चीज ये है, व्हाई द फक आर यू डिस्कसिंग अबाउट ग्लोबल मार्केट प्राइस ऑफ नेचुरल गैस? क्यों? क्या नेचुरल गैस का क्या सेंस है यहाँ पे? आप सोलर की बात करो तो आप सोलर पे फोकस करो ना। जब आप सोलर पे फोकस कर रहे हो तो आप उस चीज पे बोलो। Irrelevant. The heavy taxes levied on Genovian citizens specifically to fund the solar subsidies have severely depressed consumer spending in almost all other economic sectors, leading to a massive net loss of jobs nationwide. Very much balanced, attractive. Welcome back. Genovia's primary international competitor in solar panel manufacturing recently filed for bankruptcy due to an inability to compete with Genovia's artificial lowered price. Artificial lowered prices. Competitor. इससे क्या हो रहा है भाई? कॉम्पिटिटर आपका अगर बैंकरप्ट हो गया है उससे आपको क्या हार्मफुल है ना? अपन को वो चीज दिखा दी, ये तो उल्टा उसके लिए प्रॉफिट हो गया। लॉन्ग टर्म The long-term environmental and healthcare benefits resulting from reduced greenhouse gas emissions in Genovia are notoriously difficult to quantify in strictly monetary terms. Reduced greenhouse gas, again, that's the problem. Where is solar? Irrelevant चीज आप बता रहे। Many of the leading Genovian solar panel manufacturers rely entirely on raw rare earth materials that must be imported at high cost from other countries. That must be imported with high cost. Now, इसमें पता है ये हो सकता है आंसर। Why? Because यहाँ पे import की बात चल रही है। Import आपके लिए अच्छा है, import आपके लिए बुरा है। You don't know about it. You're not aware of that factor. Which is why we can say that this is something that we will not be, we will not be really focusing on. Why? Because the import cost minor versus macro, that is the problem, है ना? Although हो सकता है अगर थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करें ना, अपना क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट लॉजिकल सपोर्ट बनाना है, ठीक है? मैंने इसको कोरिलेट किया था डायमंड इंडस्ट्री विद इंडिया का जो है ई वाला पॉइंट को, कि डायमंड तो बाहर से ला रहे हैं, बहुत महंगा है, और इंडिया उसको मतलब बाहर से इंपोर्ट ही कर रहा है। उसके बाद हमने उसको प्रोसेस किया अपने ड्यू टू द चीप लेबर एंड एवरीथिंग, और उसको हमने मार्केट में बेचा, जिसके कारण वो बहुत सारे कंट्री के दूसरे लोग मतलब compete नहीं कर पाते हैं। Overall, the factor that we are saying is that we are not really focusing on the competitive spirit. We are not focusing on this, but what we are going to talk about is that कि भाई हमारे macro factors, national income, GDP, export, import, taxation, the employment part. Again, I can say that E is a really great answer choice. I'm not saying that it is, we can eliminate straight away. It's giving a tough competition. ये बहुत अच्छा कंपटीशन बन सकता है, करेक्ट, ये बहुत अच्छा कंपटीशन बन सकता है, but at the same time it is not the strongest. It is not providing the strongest logical support, which is why option number B becomes the correct answer choice and E is simply eliminated for this course. Is the entire part and the clarification of this clear to you? Yeah. Perfect. Let's move to next question then. Paleologist, the recent discovery. अच्छा, paleologist एक चीज बोलते हैं, paleontologist एक चीज, and that the recent discovery of distinctly fossilized panaceous feathers on Dromaeosaurus, a small theropod dinosaur, has led some overzealous researchers to eagerly conclude that in fact the animal was fully capable of powered aerodynamic flight. Okay, ये किस चीज के बारे में बोल रहे हैं? Dromaeosaurus and fuck it, DS के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है? However, change of tone, आगे वाला पार्ट ज्यादा जरूरी है. That does not mean आपका इसके however के पुराना वाला पार्ट irrelevant हो गया.
Let's see. A rigorous biomechanical analysis of the creature's shoulder joint firmly indicates that it entirely lacked the upward range of motion strictly necessary for the complex flapping mechanism seen in odd modern flying. There. मतलब इसमें कुछ चीज मिसिंग है, ठीक है, कि भाई देख एक डीएस नाम का कोई पक्षी है, इट इज एबल टू टेक एरोडायनेमिक फ्लाइट, ठीक है, एरोडायनेमिक फ्लाइट ले सकता है, बट एट द सेम टाइम इसका कुछ बायोकेमिकल एनालिसिस, इसका बायोकेमिकल एनालिसिस कुछ और चीज बता रहा है. व्हाट इज दैट? दैट इसके पास ऊपर जाने वाली कुछ ऐसी प्राकृतिक चीज रही होगी जो ये लैक कर रहा था, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ एनाटॉमिकल फीचर विच वॉज बीइंग, या उसमें लैक कर रही थी ये चीज, या प्रेजेंट थी ही नहीं उसके बॉडी में, ठीक है. अब किस चीज के लिए हेल्प कर रही है? दैट इज लाइक कॉम्प्लेक्स फ्लैपिंग. Therefore, it is certain that the feathers must have evolved to serve a different primary function entirely, such as thermal insulation or mating display. Do one thing. I would say that चलो हम ही कराते हैं practice करना. The paleontologist argument is most vulnerable to criticism on which of the following. Now, this is a really great question. मतलब सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे? व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई. क्वेश्चन बोल रहा है केसी एज पर मी कि जो हमारा जो भी रिसर्चर है, जो जिसने रिसर्च किया, उसने एक स्टेटमेंट दिया था, तो वो स्टेटमेंट के उसने कंक्लूड किया था कि एक चीज मुझे दिखाई दिया है और उसके कारण मैं कह सकता हूँ कि ये इसी मतलब ये जो पूरा डायनासोर है उड़ता होगा फेदर्स दिखने के कारण. तो वो बोल रहा है कि ये कंक्लूजन फ्लॉड है. ठीक है, ठीक है, और किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये कंक्लूजन फ्लॉड है? इसमें दो चीजें हैं. देखो, क्वेश्चन आपसे दो चीजें मांगे. मोस्ट वल्नरेबल मतलब कि भाई आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है उसमें कि भाई सबसे ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा खतरा अगर है किसी चीज, ठीक है, तो वो किस चीज में हो सकता है, किस चीज के कारण हो सकता है, ठीक है. आपको वो वाला ऑप्शन चुनना है इसमें. बेसिकली यू हैव टू आइडेंटिफाई द फ्लॉ. आपको इसमें फ्लॉ निकालना, ठीक है. Let's see what the question has to say first. It assumes, without providing adequate evolutionary justification, that modern flying birds evolved directly in a straight lineage from DS. Ideally, what the question is, बोला ही नहीं है. what the question is trying to say that कि भाई आप अगर इस चीज को वैलिडेट कर भी दो, ठीक है, तो ये lineage वाला पार्ट जो है ना, evolutionary justification, उसकी जो पुरानी वो रही है, क्या बोलते हैं, पुरानी जो उसके पूर्वज रहे हैं, सॉरी पुराने में उसके जो पूर्वज रहे हैं, उनका डिस्कशन करना है जरूरी होता है. Eliminated. It fails to consider the possibility that physical traits such as feathers could have simultaneously served multiple beneficial functions for the organisms. It fails to consider the possibility. फेल कर रहा है पॉसिबिलिटी कंसिडर करना, या जो फिजिकल ट्रेट्स हैं फेदर्स जैसे, वो कुछ और फंक्शन भी सर्व कर सकते हैं. मतलब नॉट एक्स बट इट मस्ट बी वाई. ये समझ आया? नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं समझ पाया? नहीं, मेरा तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये था कि ठीक है, एक्स के साथ साथ आप वाई पे भी बोल रहे हो कि फेल टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी दैट, हाँ, तो मैं तो ये समझ रहा था कि ठीक है उड़ने के लिए हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास इस फीडर्स के बहुत सारे और भी फंक्शंस होंगे. ओके,
तो मैंने तो इस बेसिस पे उसको किया, क्योंकि वहाँ पे अगर केवल फेदर्स की बात करें तो वो सिर्फ ये बोल रहा है कि अगर उसपे फेदर्स पाए गए हैं तो वो उड़ने के काबिल है, लॉन्ग फ्लाइट के काबिल है। और ये बोल रहा है कि ठीक है, पॉसिबिलिटी ये है कि भाई वो उसका मतलब उस उड़ने के अलावा वो और भी बहुत सारे फंक्शंस करता होगा, ठीक है, जो उसने मेंशन कर रखा है डिस्प्ले और ये सब करने के लिए, अट्रैक्शन के लिए, ये सब के लिए। तो मैं इस बेसिस पे मतलब इसको ऐसा नहीं कि एकदम से एलिमिनेट कर पाया था, मैंने रखा था बी और सी में कंपैरिजन जब किया था तो मुझे लगा कि सी बेटर है। आइडियली इस क्वेश्चन में बैटल जो है बी वर्सेस सी में है, बाकी ऑप्शंस तो इजीली एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ठीक है, अब अपन पहले ये देखते हैं कि भाई ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, वो कहना क्या चाह रहा है। अब पहले हम ये बताओ कि डिड वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली? पक्का? यस कैसे? हाँ मंजू, यू आर नॉट आंसरिंग। मंजू, हाँ Casey, Casey, I am much tired. I will just watch. I am not such much active. सॉरी, I am not much active, so I will watch the class only. अच्छा, यू नॉट, कोई बात नहीं यार, फिर इफ यू आर नॉट एक्टिव यू कैन लीव द क्लास, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कि मैंडेटरी क्लास करनी है। इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉर्डिंग देख लेनी, कोई बात नहीं, अभी आप चले जाओ, है ना? हाँ Casey. Okay, chalo, okay, Mahesh, towards you then. The question is asking us this one thing, that what mistake is that paleontologist making in his reasoning? भाई जो paleontologist है वो अपने रीजनिंग में क्या मिस्टेक कर रहा है, ठीक है? मोस्ट वल्नरेबल टू क्रिटिसिज्म। अब देखते हैं, ठीक है? आपसे मान के चलो, आपसे जीमेट क्या चाहते हैं? वो आपसे फैक्ट्स नहीं चाहता, वो आपसे साइंस नहीं चाहता, ठीक है? आपको बस ये बताना, you have to find the flaw in that logic that person paleontologist is using. आपको उसमें फ्लॉ निकाल के देना, ठीक है? अब अपन ऑप्शन नंबर बी को थोड़ा सा वैलिडेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी saying it is failing to consider the possibility that the physical traits such as feathers could have simultaneously served multiple beneficial functions for the organism. Now, author जो है वो एक ही चीज को अज्यूम करते हैं, ठीक है? आइडियली द ऑथर इज अज्यूमिंग ओनली वन फंक्शन, बट इन एवोल्यूशन प्लीज अंडरस्टैंड दैट जब अपन एवोल्यूशन की बात करते हैं वी टॉक अबाउट मल्टीपल जितने भी ट्रेड्स आपके होंगे, whatever traits you might be having in that particular point of time, it is pretty much also that they might be having multiple simultaneous usage, ठीक है? मान लेते हैं, चलो आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही, that the feathers were not for powered flight, but अगर वो powered flight के लिए नहीं है, they still they could still help you to glide करने में हेल्प कर सकते हैं, आपको बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? आपका टेम्परेचर भी रेगुलेट कर सकते हैं, हाँ वो ये सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं, बिल्कुल। आपके डिस्प्ले असिस्ट भी कर सकते हैं ये। तो जब ये सारी चीजें कर रहे हैं, डोंट यू थिंक इट इज डायरेक्टली ब्रेकिंग द कंक्लूजन? एंड ऑथर की जो मेन फ्लॉ है वो इसी चीज में है। मेरे को ये लग रहा था ना कैसे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन पे ही फोकस्ड है। हाँ, कि मतलब फीदर्स मिला तो मतलब वो फ्लाइट कर रहा है। करेक्ट। वो ये सब चीज सोच ही नहीं रहा है कि वो उसका कोई मल्टीपल फंक्शन हो सकता है या नहीं। तो अगर मैं उसको काउंटर मतलब उसको पॉइंट आउट करा दूं कि भाई देखो तुम्हारा जो सोचने का है कि नहीं इसका बहुत सारा फंक्शन है और इसलिए तुम ये जो बोल रहे हो ये गलत बोल रहे हो। ठीक है, अभी क्लियर है कि नहीं? हाँ पक्का? हाँ चलो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। इट ड्रॉज अ डेफिनेटिव, यार ये हम पढ़ के ही बोल देंगे। क्या बोले थे क्रिटिकल रीजनिंग में?
फर्स्ट रूल क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। बोले थे ना, क्या हाँ। ऑप्शन नंबर सी आपको वो अलाउ कर रहा है? नहीं, ये एकदम रिजिड हो। Which is why we Definitive. again cannot say कि भाई सी आपका एक आंसरिंग ग्राउंड पे है, ठीक है? Considering that C eliminate हो गया आपका। आगे देखते हैं। It improperly treats a failure by other researchers to definitively prove a specific biological claim as absolute truth, that the claim itself is fundamentally false. Mischaracterization, character ही बदल दी, eliminated. It relies on an inherently flawed biomechanical comparison between a long extinct terrestrial reptile and highly specialized modern avian species. Comparison that is irrelevant. Irrelevant comparison. But how can you say that it was a biomechanical extraterrestrial reptile and modern avians? उसके बीच में comparison हो रहा है. How can you say that? Can't really नहीं, abide बिल्कुल by नहीं कर that thing. सकते हैं। ना, which is why we can again say कि this is again a flawed argument for you. हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे काम पर खुद से सॉल्व। इसको सॉल्व किया है मैंने 8 को ना। हाँ जी, हाँ, 8 का मेरा आंसर सी आ रहा था। आपका आंसर सही है, ठीक है। तो 9 का बताओ। 9 का मैंने बी मार्क किया, 10 का भी बी मार्क किया। 9 का आपने बी फॉर सेकंड। हाँ, हाँ, सेकंड वाला दोनों में, उसके सेकंड वाला बी फॉर बॉम्बे। 10th में भी बॉम्बे को मार्क किया। ठीक है, then I guess अपनी शीट खत्म ही है। So to the people who are watching the recording, I want you all to solve question number 8, 9 and 10, है ना? 4, 5, 6, 7 हमने कराया अभी। आप लोग से बस एक चीज की दरखास्त है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सॉल्व करें, उसके आंसर्स बताएं, है ना? एंड that's it guys, the class is over for this.